In this video, we'll discuss about mitotic phase. In the previous video, we have discussed about phases of cell cycle. Now, what are phases of cell cycle? This is the interphase, and this phase is called as M phase, right? So, in interphase, there is G1, S, and G2. And how does it occur? This have been discussed in the video of phases of cell cycle. Link I'll share in the description box. And this phase includes M phase or mitosis phase. During this phase, cell's nucleus divides, right? And this enters into various phases like prophase, metaphase, anaphase, telophase, right? And then this cell will divide into two cells by a process of cytoplasm division called as cytokinesis. So division of nucleus is called as karyokinesis and division of cytoplasm is called as cytokinesis. So these four stages of cell division, prophase, metaphase, anaphase and telophase, occurs during the M phase or mitosis phase, right? So after mitosis, or we can say after these four steps, there is occurrence of cytokinesis and one cell divides into two cells by karyokinesis and by cytokinesis. Now we'll study in detail how these steps they are taking place. So mitosis, this helps in multiplication of the cells. From one cell two, then two to four, then 8 and so on. So there is formation of million of cells by this process of mitotic cell division. And this occurs in somatic cells. So this is also called as somatic cell division. And if parent cell has 4 chromosome number, daughter cell will also have the 4 chromosome number. If parent cell has 16 chromosome number, daughter cell will also have 16 chromosome number. So whatever chromosome number is of the parent cell, that will be of the daughter cells during mitotic cell division. So it will remain same. So this is also called as equational cell division. So this mitosis is very important for the formation of the embryonic state from the zygote. zygote fertilization के बाद बनता है और इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिप्लॉयड होता है. अब ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा बहुत सारे सेल्स में, तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल बन जाता है विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड. दिस इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो से बाद में एम्ब्रियो बनेगा बाय डिफ्रेंशिएशन. सो ये zygote से एम्ब्रियो का बनना, अगेन दिस इज़ बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. तो अगर हम एक सीड को सो कर देते हैं, जैसे ये मान लीजिए सीड है, इसमें ये एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट एम्ब्रियो पार्ट, तो ये होता है प्लूम्यूल पार्ट एंड दिस इज़ द रेडिकल पार्ट. अब जो प्लूम्यूल पार्ट है ऊपर वाला, दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम. अब ये जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम. अब यहाँ से पूरा शूट सिस्टम बनना और यहाँ से पूरा रूट सिस्टम बनना, right? This is happening with the help of mitotic cell division. So formation of root system, formation of shoot system in plant, this is occurring with the help of mitotic cell division. Then helping in asexual reproduction, अगर sexes नहीं involved है during reproduction, during multiplication, अगर बिना sexes के हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं asexual. अब कुछ जैसे पार्ट्स हैं, जैसे बोन मैरो जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, स्किन के सेल्स हो गए जहाँ पे स्किन के सेल्स, जैसे कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ नए बन गए, तो ऐसे सेल्स में थ्रू आउट माइटोसिस होता रहता है. अगर जैसे हमें वूंड भी हो जाता है तो दैट गेट्स हील्ड अप बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. सो बोन मैरो और स्किन सेल्स में, एनिमल्स में माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ होता रहेगा. सो माइटोसिस जो है बेसिकली जैसे सेल साइकिल हमने डिस्कस किया था कि उसमें पहले इंटरफेस आ गया, ठीक है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन आ गई कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन आ गई साइटोकाइनेसिस. तो न्यूक्लियर डिवीजन में हमने देखा है कि ये 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो अगर हम साइटोकाइनेसिस देखें तो ये है क्या, एक सेल का जब जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 सेल बन जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. अब हम देखेंगे ओवरऑल होता क्या है. ये एक पेरेंट सेल है, फिर इससे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, इसमें 4 क्रोमोसोम नंबर है, तो डॉटर सेल में भी कितने हैं, 4 क्रोमोसोम नंबर. सो ये एक न्यूक्लियस जो है 2 में डिवाइड हो गया और इसका साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो गया. कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, राइट. सो कैरियोकाइनेसिस व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इट इंक्लूड फेजेस
प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। होते सी ये सब इकट्ठे ही हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हमने इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। और ये सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेस। अब हमने कहा कि ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, धागों की तरह होते हैं, ठीक है। तो पहले ये धागों की तरह है, फिर ये इनसे पानी निकलेगा, दे विल लूज वाटर, और ये जो धागे हैं थोड़े मोटे हो जाएंगे ऐसे करके, दे विल बिकम शॉर्ट एंड थिक, राइट। सो अल्टीमेटली ये अज्यूम कर लेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सो दे विल अटेन द शेप एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम, राइट। और क्या चेंजेस आएंगे, ये जो यहाँ पे हमने कहा कि ये सेल है, अब इसकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये भी थोड़ा डिजनरेट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिजनरेटिंग, ये थोड़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट हो रही है, और जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो पानी लूज करके थिक होके अल्टीमेटली दे गेट चेंज इनटू क्रोमोसोम्स, राइट। अभी हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी करते हैं। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा, और ये आप देख रहे हो ये धागे से बन रहे हैं, ये स्पिंडल अपरेटस बन रहा है, ठीक है, स्पिंडल अपरेटस। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिजनरेटेड, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है दे गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। और एक और चेंज आती है तो कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला, ये भी न्यूक्लियोलस भी थोड़ा देखो आप डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं यहीं पे डिस्पर्स हो जाएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो इसका होता है प्लाज्म, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड बाय अ सेल वॉल, ठीक है। तो इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, और उसके अंदर ये क्रोमोसोम बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज सेल डिवीजन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके कहते हैं, कंपेयर अगर करें, हमने कहा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है। स्पिंडल अपरेटस हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट हो रही है और ये थिक क्रोमोसोम बन रहे हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस भी डिजनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली, ये परमानेंट स्लाइड है और ये हमने डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में ये मान लीजिए एनिमल सेल है, उसमें ऐसे सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें सेंट्रियोल बन जाता है दोनों तरफ, ऐसे दो, एक सेंट्रियोल दो में डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल दो में डिवाइड हो गया, अब एक जो सेंट्रियोल है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स क्या है, बेसिकली पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियर इनवेल्व। सेंट्रियोल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल अपरेटस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर जो स्पिंडल अपरेटस बनता भी है, अगर हम देखें तो पहले हम क्रोमोसोम का देखें कि सेंटर में इसकी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाती है, दिस इज सेंट्रोमियर और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये हमने देखा ये क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल जो है यहाँ से ऐसे धागे धागे निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। और ये धागे के साथ देखो पूरा अटैच्ड है ऐसे करके, ये स्पिंडल अपरेटस बन रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये पूरा ऐसे अटैचमेंट में मदद कर रहा है। और यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस एरिया में, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। तो ये होगी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हो गया सेंट्रोमियर, ये हो गया सेंट्रियोल, और ये हो गया पूरे स्पिंडल अपरेटस के धागे, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, काइनेटोकोर। क्लियर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसकी देखो क्लियर हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोफेज सेल डिवीजन। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हमें पूरा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा इलाज करके देखें तो ये क्रोमोसोम बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये वाला देखें न्यूक्लियस, तो इसमें कॉम्पैक्ट है, तो ये इंटरफेस शो कर रहा है अभी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जिसमें लूजली अरेंज क्रोमोसोम है, तो ये थिक भी हैं, मोटे भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेज स्टेज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पिंडल अपरेटस जो बनता है वो कैसे होता है। अब हमने कहा कि अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पे एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रल रेस के साथ इसको हम बोलते हैं एस्टर। अब ये जो स्पिंडल अपरेटस धागे बन रहे हैं इनके साथ ही क्रोमोसोम अटैच होते हैं, राइट। अब ये जो पूरा स्पिंडल अपरेटस है ये कई तरह का होता है। अगर ये कलरलेस है तो हम बोलेंगे एक्रोमैटिक, अगर ब्राइट है तो हम बोलेंगे बाय रेफ्रिजरेंट, अगर एनिमल सेल्स है तो उसमें बोलेंगे एम्फी एस्टर, क्योंकि दोनों तरफ एस्टर है। प्लांट में एस्टर नहीं होता तो हम बोलेंगे एनेस्ट्रल। तो अगर देखिए पूरा, अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें तो ये एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, दोनों बराबर में डिवाइड हो रहा है, ये इसका इक्वेटर है, ठीक है। तो अगर ये पूरा सिमेट्री में है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। लेकिन मान लीजिए अगर स्पिंडल अपरेटस ऐसे है, ऐसे करके,
तो वो सिमेट्री तो नहीं हुई, तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब ये जो पूरे ये वाले जो चीज़ें हैं धागे किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। अब एक धागे में ऑलमोस्ट 4 से 12 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये पूरा हम देख रहे हैं कि इसमें स्पिंडल अपरेटस जो है पूरा ये धागों का सिस्टम है जो बना हुआ है जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच्ड है। तो इसमें कितनी तरह के धागे हो गए, एक है ये देखिए ध्यान से, ये जा रहा है कॉन्टीन्यूस धागा, ये भी है कॉन्टीन्यूस धागा, ये वाला तो हम बोलेंगे कॉन्टीन्यूस फाइबर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये ऐसे टूटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके हम बोलेंगे डिसकॉन्टीन्यूस। अब ये धागे जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच्ड है यहाँ पर ऐसे करके हम बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब यहाँ के बीच में दोनों को जोड़ रहा है एक हरे रंग का धागा दिखाया हुआ है ना हमने, दिस इज कॉल्ड एज इंटरजोनल फाइबर। और यहाँ पे जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेस, क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रल रेस। तो अगर हम देखें पूरा प्रोफेस के की पॉइंट्स क्या हैं, तो हमने देखा कि ये मान लीजिए सेल है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो डिजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मोटे मोटे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्रोमेटिन थ्रेड्स दे गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम्स। अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा कि ये सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, और ये पूरा धागों के साथ ऐसे अटैच हो जाता है। तो ये पूरी चेंजेस प्रोफेस में आ रही हैं। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस हमने कहा था, न्यूक्लियोलस भी डिजनरेट हो गया, ठीक है। और स्पिंडल, ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट होकर क्या में कन्वर्ट होगी, स्पिंडल अपरेटस में। तो ये सारे की पॉइंट हैं प्रोफेस स्टेज के, जिसमें से ये सारी चेंजेस आती हैं। अब प्रोफेस के बाद सेल विल एंटर इनटू द मेटाफेज स्टेज। अब हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट हो गई, वो कम्प्लीटली डिजनरेट हो गई। अब जब एक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब ये जो क्रोमोसोम थे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, इसमें डिस्पर्स हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जो क्रोमोसोम थे थोड़े बहुत जो उनकी कंडेंसेशन रह गई थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, एंड दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो अगर हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, मेटाफेज। मेटाफेज क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे हमने डिस्कस किया, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ऑलराइट। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा से देखें, जो पहले हम कर भी चुके हैं अभी, तो मैं थोड़ा इलाज करके दिखाती हूँ आपको। सेंट्रोमियर, ये डिस्क शेप काइनेटोकोर्स, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एस्ट्रल फाइबर्स, और यहाँ पे ये स्पिंडल अपरेटस। तो ये हम डिटेल में अभी देख चुके हैं। तो ये सारी चेंजेस आ गई और ये पूरा बन गया और पूरा क्लियर हो गया ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, और ये पूरा अटैचमेंट में मदद कर रहा है इनको। सो क्रोमोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यहाँ पर ये क्या है, काइनेटोकोर्स, जिसके साथ ये धागे अटैच हुए हुए हैं, ठीक है जी, ऑलराइट। अब मेटाफेज में हमने देखा, जो अभी हमने चेंजेस देखी, क्रोमोसोम इसमें सबसे छोटे और मोटे होंगे, शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। अब ये है सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल अपरेटस। अब आप ध्यान से देखो, क्रोमोसोम सारे सेंटर में अरेंज हो गए। सो क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पिंडल अपरेटस इन द फॉर्म ऑफ अ मेटाफेजिक प्लेट। तो ये इक्वेटर है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम हम देख रहे हैं कि सेंटर में ऐसे प्लेट की तरह अरेंज हो जाते हैं। ये स्पिंडल अपरेटस भी क्लियरली बन जाता है, ठीक है। और ये पूरा जो मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट, राइट। तो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि ये जो पूरे इनके साथ क्रोमोसोम के साथ जो धागे लगते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। अब ये स्टेज कंप्लीट होगी मेटाफेज। अगर हम परमानेंट साइड में कंपेयर करें तो हमें मेटाफेज यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मेटाफेज है, पूरे सेंटर में ऐसे धागे धागे मोटे मोटे हमें नज़र आ रहे हैं, छोटे और मोटे क्रोमोसोम इस स्टेज में हमें नज़र आते हैं, प्लस दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल अपरेटस, ठीक है। अब की फीचर्स क्या हो गए इसके, chromosomes they are arranged at the equator of the spindle apparatus as an equatorial plane and the form of metaphasic plate, right। अब हमने देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके साथ ये क्रोमोसोम अटैच्ड हैं थ्रू देयर काइनेटोकोर्स, राइट। और अगर हमें मान लीजिए क्रोमोसोम का स्टडी करना है स्ट्रक्चर, तो बेस्ट वी कैन स्टडी ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, राइट। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि ये है क्रोमोसोम, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम बोलते हैं सेंट्रोमियर है।
अब ये सेंट्रोमियर ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे इसको एक कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। मैं कलर बदल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज एनाफेजिक प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये इसमें बन जाती है जो एनाफेज को प्रमोट करेगी, ठीक है। इनमें प्रोटीन ऐसे डेवलप हो गई और सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो जाता है। अब हम वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनाफेज स्टेज में। आ जाइए एनाफेज में। अब हमने देखा कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम यहाँ पर रहने थे ऐसे करके, इन द फॉर्म एन इक्वेटोरियल प्लेट ऐसे करके। अब हमने कहा कि ये सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हुआ और बीच में ये बन गया एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसे करके होगा, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाली चीज़ है ये डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर ये डिज़ोल्व होगी तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा ऐसे करके, यानी कि दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, ठीक है। तो ये एनाफेज में चेंजेस आना है, राइट। सो ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द इक्वेटर इन द फॉर्म ऑफ मेटाफेसिक प्लेट split simultaneously, and the two daughter chromatids of future daughter nuclei start migrating toward the two opposite pole. अभी मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में भी बताती हूँ ये कैसे हो रहा है। Each chromosome moves away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remain directed toward the pole. अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमने अभी जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो गया। सेंटर में ये है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कोहेसिव प्रोटीन भी बोलते हैं। कोहेसिव मतलब वो जोड़ के रख रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जोड़ के रख रही है प्रोटीन। अब ये जब प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि एनाफेज होना है तो ये प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाएगी। जब ये डिज़ोल्व होगी तो एक सेंट्रोमियर का टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम का पार्ट इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब एक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और एक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे देखें दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज में। तो जब ये भी स्टार्ट हो गया तो हम इसको बोलते हैं अर्ली एनाफेज, ठीक है। तो अब की इवेंट क्या है, सेंट्रोमियर्स दो में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो डिज़ोल्व हो जाता है और दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऐसे ऑपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं। दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, राइट। तो ये अर्ली एनाफेज में हो रहा है। अब मिडिल एनाफेज में क्या होगा कि हमने कहा कि ये जो है ऐसे करके चला गया ऊपर और ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ये वाला हम दिखा रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे आ रहा है। मिडिल एनाफेज में थोड़ा डिस्टेंस में वो मूव कर जाते हैं। तो अगर हम एनाफेज स्टेज देखें तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रही है एनाफेज स्टेज। तो हमने देखा कि दो पोल्स में ऐसे क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं हमें। तो अभी हम देखते हैं कि कम्प्लीटली कैसे वो एनाफेज स्टेज जो है, जैसे अभी ये मिडिल एनाफेज है तो मिडिल एनाफेज में हल्का सा मूव कर गए हैं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल ऑफ द स्पिंडल अलॉन्ग द पाथ ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर। अब जिस क्रोमोसोम के साथ ऐसे लगे हुए हैं इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। अब ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, जब खींचेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऑल राइट। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि वो इसको खींच रहा है। अब लेट एनाफेज में हमने देखा कि ये जो बने थे दो ग्रुप्स, चार थे ना क्रोमोसोम, चार ऊपर चले गए, चार नीचे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर चले गए ऐसे करके, क्योंकि ये धागे ने खींच लिया इसको ऊपर। तो दो ग्रुप बन गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अल्टीमेटली ये दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेट एनाफेज। क्या बोलेंगे इसको, लेट एनाफेज। तो पहले हम इसकी परमानेंट स्लाइड देख लें। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास एनाफेज स्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस आई, फिर से दोबारा हम रिपीट करते हैं कि मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। ये है हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है जी। ये सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो गया था। अब इसमें हम कलर बदल के दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये डिज़ोल्व हो गया, ये वाली चीज़ जो है डिज़ोल्व हो गई, राइट। तो हमारे पास ऐसे करके, एक मिनट हम दिखाते हैं, ये हो गया, ठीक है जी। अब ये चीज़ ऊपर मूव कर गई ऐसे करके और ये चीज़ नीचे मूव कर गई, ठीक है। अब हमारे पास चार क्रोमोसोम थे, चार ये बन गए, चार ये बन गए, चार ऊपर चले गए, चार नीचे चले गए। तो ये पूरे ऊपर ऐसे मूव कर गए, यहाँ पर इस जगह और इस जगह। तो इसको हम बोलते हैं एनाफेज स्टेज। दो ग्रुप्स में क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब क्या होगा, चार अब और ऊपर चले गए, आप देखो और खिंच गए, बिल्कुल पोल पे पहुंच गए। अब ये जब ये स्टेज आ जाए, क्रोमोसोम दे रीच एट द पोल ऑफ द स्पिंडल, धागों ने इनको और ऊपर खींच लिया, ठीक है। अब इसके आसपास देखो, ये मैंने इसे दिखाया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑर्गेनेलिस।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल ऑर्गेनेली क्या है, सेंटर ऐसे करके सेल ऑर्गेनेली होती है क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से क्या बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये एनाफेस थोड़ा क्लियर है, ऑलराइट। और ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये पोल पे बॉन्ड गए हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे हम देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो सेंटर में से प्लेट भी बन रही है, ये साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है, और ये वाली जो स्टेज है ये प्रोफेस है, इसमें लूजली अरेंज क्रोमोसोम है। तो हमने देखा कि 2 ग्रुप्स में क्रोमोसोम ऊपर चले गए, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई है, तो हम इसको बोलते हैं अर्ली टीलोफेस। क्या बोलते हैं, अर्ली टीलोफेस। तो जैसे हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है वाला। ठीक है जी, ऑल राइट। अब क्या होगा, अब टीलोफेस जब कंप्लीट हो जाता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके आसपास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब 2 हिस्सों में क्रोमोसोम बन गए, 4 ऊपर थे 4 नीचे, क्योंकि हम 4 लेके चल रहे हैं। हम अगर 7 लेके चल रहे हैं तो ऊपर 7 होंगे, अगर 14 लेके चल रहे हैं तो ऊपर 14 होंगे, अगर 16 लेके चले तो ऊपर 16 होंगे, राइट। तो जितना भी क्रोमोसोम नंबर लेके हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सेल डिवीजन होगा। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए, एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ऐसे करके, ठीक है, अब ये फिर से ऐसे कन्वर्ट, धागों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली ये ऐसे धागे बन जाएंगे ऐसे करके, जिस क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। प्लस इसमें हमारे पास फिर से न्यूक्लियोलस बन जाएगा, क्योंकि सेल में ही पड़ा था पार्टिकल। जब न्यूक्लियोलस डिजनरेट हुआ तो उसके पार्टिकल सेल में ही पड़े थे, तो फिर से वो असेंबल होकर क्या बना देंगे, न्यूक्लियोलस बना देंगे। तो इस प्रोसेस को जब न्यूक्लियोलस बन जाता है हम बोलते हैं न्यूक्लियोलोजेनेसिस। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलोजेनेसिस, और हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे करके 2 ऐसे हम देखेंगे कैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर इन्वेल्प। तो यहाँ पे सेंटर में जब ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा तो इसको फिर हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब ये जो स्पिंडल अपरेटस है धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी कि साइटोकाइनेसिस होता कैसे है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए 2 सेल बन गए हैं, ये यहाँ पर भी क्लियर है, और ये साइटोकाइनेसिस भी नज़र आ रही है। तो एक सेल से कितने सेल बन गए हमारे पास, 2 सेल्स। 1 पेरेंट सेल हैज़ डिवाइडेड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। ये हो गया प्रोफेस। ठीक है, अब ये सेंटर में हो गया मेटाफेस, एनाफेस अभी हमने पीछे देख लिया था। अब ये हो गया टीलोफेस, यहाँ पे देखो अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर कंप्लीट हो गया है टीलोफेस। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस पूरे की उसके लिए अलग वीडियो डालेंगे, और धीरे धीरे करके ये स्पिंडल अपरेटस भी डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसके की इवेंट्स क्या हो गए, क्रोमोसोम दे क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स, जब भी हमने देखा है कि अलग अलग पोल्स पे ऐसे क्लस्टर हो गए हैं। ठीक है, और फिर वो दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन थ्रेड्स, राइट। और हर एक के आसपास क्या बन गया, न्यूक्लियर इन्वेल्प बन गया, और एक पेरेंट सेल से कितने बन गए, 2 डॉटर सेल बन गए। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलिस जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बन जाएंगे। तो पहले वो सब खत्म हो गए थे, अब सारे फिर से दोबारा बन जाएंगे, और 1 सेल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 2 सेल्स। और क्रोमोसोम नंबर इसमें 4 था, और इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम इन द डॉटर सेल, सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया प्रोफेस। अब हमने प्रोफेस में हमने देखा था क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डीजनरेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, क्रोमेटिन थ्रेड्स गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस डीजनरेट। फिर मेटाफेज में हमने देखा कि स्पिंडल अपरेटस कंप्लीट बन गया है, 4 तरह के धागे हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम लगे हुए हैं, एंड दे कम टू लाई एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल अपरेटस। फिर हमने देखा कि ये ऐसे पोल्स पे चले गए डिवाइड होके। ठीक है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, सेंट्रोमियर में जो प्रोटीन था उसको डिसॉल्व कर दिया, और ये टुकड़े हो गए इसके, 4 ऊपर चले गए 4 नीचे चले गए। सो अल्टीमेटली विल गेट 2 न्यूक्लियाई जिसके आसपास ये बन गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये ध्यान से देखिए, अब ये भी प्रोफेस है और ये भी प्रोफेस है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब मेटाफेस देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला मेटाफेस है, ये भी मेटाफेस है। ठीक है, अब हम एनाफेस देखते हैं, ये एनाफेस है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो इस स्लाइड में है एनाफेस, ये हमें एनाफेस नज़र आ रहा है। तो हमने देखा ये एनाफेस हो गया। अब हम देखेंगे कि टीलोफेस हमें ये नज़र आ रहा है,
और ये कंप्लीट जो टेलोफेज साइटोकाइनेसिस के साथ हमें नज़र आ रहा। सो हमने कहा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल, टू डॉटर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये होल समरी है माइटोसिस की। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस, जिसमें पेरेंट सेल हैज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? अब अभी हमने देखा कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, एंड दिस यूजली अकर इन द डिप्लॉइड सेल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे जैसे मेल हनी बीज में ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है। ठीक है, या कहीं और भी कुछ लोअर प्लांट्स में भी हैप्लॉइड सेल्स में होता है। यूजली दिस अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल। अब एक सेल से जब बहुत सारे सेल बनते हैं तो हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर से क्या कन्वर्ट हो जाता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, और इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि सोमैटिक सेल में होती है। ठीक है, तो अब ये जब सीड जर्मिनेट होता है या शूट सिस्टम बनना है या रूट सिस्टम बनना है, एक पौधा जो है पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो ये पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है कंट्रोल करता है, दैट इज़ माइटोटिक सेल डिवीजन। अगर हम ये देखें शूट टिप और यहाँ पर हम देखें रूट टिप, ठीक है, तो रूट टिप भी, इसमें भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसमें भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा इसकी इलांगेशन में, ये रूट की इलांगेशन में ये मदद करता है। तो ये पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी एक्टिव हैं, जो मतलब टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब एक सेल है, मान लीजिए, अब ये मेरे को बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है जी, इसमें ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। अब एक है न्यूक्लियस पार्ट, इतना पार्ट, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, कि न्यूक्लियस के आसपास कितना साइटोप्लाज्म है, यहाँ हम इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब जब एक सेल ऐसे दो में डिवाइड हो गया, ठीक है जी, तो पहले वो छोटा होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर ये प्रॉपर यही वाला साइज इसका आ जाएगा, पेरेंट सेल वाला। तो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने में भी माइटोटिक सेल डिवीजन मदद करती है। प्लस दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। अब अगर मान लीजिए कहीं वूंड आ गया, ये हमारी स्किन है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें कि ये स्किन है, ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे वूंड आ गया। अब वूंड के आसपास भी ऐसे सेल डिवीजन होके इसको कवर कर लेता है बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। सो एपिडर्मल टिश्यू में भी हो सकता है माइटोटिक सेल डिवीजन, लाइनिंग ऑफ गट में भी, और ब्लड सेल्स में भी रिपेयर करने में मदद करता है। मीन जैसे पुराने सेल की ऑटोफेगी हो गई या डेड हो गए तो नए सेल दोबारा बनने हैं, तो सेल रिपेयर में मदद करता है। प्लस दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड रीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज़। रीजनरेशन, मान लीजिए कोई ये ब्रांच है, ये टूट गई है, अब नई बननी है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन से हो सकती है, तो इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। या आपने देखा होगा कि अगर लिजर्ड का जो टेल है कट जाता है, वो दोबारा से बन जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, जैसे 4 क्रोमोसोम थे, तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में भी वही 4 क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो जीन से वही ट्रांसफ़र हो रही हैं। सो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जेनेटिक सिमिलैरिटी इन ऑल द इंडिविजुअल्स वेयर माइटोटिक सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। हीलिंग ऑफ वुंड्स, या पौधों में कोई कट आ गया वहाँ पे भी माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, या एनिमल्स में कोई कहीं पे ज़ख्म हो जाता है तो उसके आसपास भी माइटोसिस से हीलिंग हो जाती है। तो अगर माइटोसिस का प्रोसेस देखें, चाहे वो इंसेक्ट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे छोटा जीव है या बड़ा जीव है, बिग एनिमल या स्मॉल एनिमल, या कोई छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है, सब में सेम प्रोसेस रहता है। सो दे हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी इन ऑल द universal occurring organisms on the earth. So this is significance of mitosis, which is very, very important for multiplication, for growth and development, for growth of the meristematic tissues, for maintaining the nucleoplasmic ratio, for maintenance of the chromosome number, for healing of the wounds, for repair of the cell, maintaining the genetic similarity, formation of asexual reproduction process. मीन कईयों में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो एसेक्सुअल होता है, स्पोर्ट्स की हेल्प से हो रहा है, तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये मदद करता है। हीलिंग एंड बेसिक सिमिलैरिटीज मीन universally throughout mitotic cell division remains the same. So this is all about mitosis and its significance. I hope you liked my video. If you have any question, you can ask me in the comment box. I'll share the notes in the description box. You can copy from there.
But to understand the whole mitotic process, you have to watch my video, and I will also share the MCQ, that is question answers, in the description box. So thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. और आगे मैं साइटोकाइनेसिस की जो है एक वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ. Thank you for watching it.